तो एक बार फिर से सदन के अंदर जया बच्चन गुस्से में है और आपको बता दें कि अब जया बच्चन की तरफ से माफी की मांग की गई है और कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। तो देखिए जया बच्चन ने माफी की मांग की है क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें संबोधित किया जाता है जया अमिताभ बच्चन को लेकर और इसके बाद आसन की तरफ से माफी की मांग की गई है और ये कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. तो सुना आपने, लेकिन क्यों आखिर भड़की जया बच्चन? क्या ये पूरा मामला है और क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है जिसके लिए इतनी आपत्ति दर्ज कराती हुई या इतनी भड़कती हुई जया बच्चन नजर आ रही हैं? जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper,
I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. वहीं विपक्ष के रवैये को लेकर जेपी नड्डा ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव जरूर पास करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक तरह का उनका व्यवहार था ये अमर्यादित था। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं जेपी नड्डा ने भी इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा है कि मामले पर निंदा प्रस्ताव जरूर पास करें। विपक्ष का जो आचरण है वो बहुत ही गलत है और आज का व्यवहार बहुत ही अमर्यादित था। जैसा मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है, और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव ज़रूर पारित करे। आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वह बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी घटनाएं की घोर निंदा की जाए। और मैंने पहले भी कहा कि किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना और देश के विघटनकारी शक्तियों का समर्थन करना यह अति ही निंदनीय है और इसलिए सर्वसम्मति से आज की घटना का मैं निंदा करता हूं, प्रस्तावित करता हूं। और आपको बता दें कि विपक्ष के रवैयों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अमर्यादित व्यवहार किया गया है इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देश को अराजकता में धकेला है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। और इधर विपक्ष के हंगामे पर बोले जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि ये दरअसल सोनिया गांधी के उकसाने पर हुआ है। विपक्ष का जिस तरह का व्यवहार है वो अमर्यादित है और बैठे बैठे हंगामे के लिए सोनिया गांधी उकसा रही थी, तो हंगामे के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। उन्हीं के इशारे के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी का फिर से पीएम बनना दरअसल इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हंगामा बरपा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। सरप्राइज था जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है। आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए।
वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर, और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त किए हैं, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उपसभा